Hello everyone, this is chapter number 4, Exponent and Powers, worksheet number 2. First question is, find the reciprocals of each of the following. First question is 12 to the power 5. We have to find the reciprocal of this given exponent. So reciprocal of 12 to the power 5 is 1 upon 12 to the power 5. Again, this can be written as 1 upon 12 whole power 5. Second part of this question is minus 9 to the power 5. So reciprocal of minus 9 to the power 5 is 1 upon minus 9 to the power 5. Again, this can be written as 1 upon minus 9 whole power 5. Third part of question number 1 is find the reciprocal of 2 upon 7 whole power 3. So we will write reciprocal of 2 upon 7 whole power 3 is. तो आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल करते समय हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं. सो इट विल बी 7 अपॉन 2 होल पावर 3. रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के जो प्लेसेस हैं आपस में चेंज, यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं. 2 अपॉन 7 का हो गया 7 अपॉन 2 और पावर जो है वो वही रहेगी. फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 3 अपॉन 7 होल पावर 7. We will write the complete statement. Reciprocal of minus 3 upon 7 whole power 7 is equals to, अब ये फ्रैक्शन है इसका उल्टा लिख देंगे, यानी कि 7 और 3 के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, माइनस एज इट इज रहेगा. सो माइनस एज इट इज एंड 7 अपॉन 3 power same. So reciprocal of minus 3 upon 7 whole power 7 is minus 7 upon 3 whole power 7. Fifth part of question number 1. Minus 1 upon 15 whole power 8. Reciprocal of minus 1 upon 15 whole power 8 is minus as it is minus 15 upon 1 to the power 8. हम यहाँ देख रहे हैं माइनस 15 अपॉन 1. डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल माइनस 15 लिख सकते हैं. So this becomes minus 15 to the power 8. It is the reciprocal of minus 1 upon 15. माइनस का साइन ऐसा का ऐसे ही रहेगा, माइनस के साइन को हम चेंज नहीं करेंगे. सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. minus 8 upon 13 to the power 99.
रेसिप्रोकल ऑफ -8/13 टू द पावर 99 इज, अब रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेसेस चेंज कर देंगे, माइनस जहां है वहीं रहेगा, माइनस ऊपर है ऊपर लगा लो, 13/8 and power 99 as it is. So this -13/8 to the power 99 is the reciprocal of -8/13 to the power 99. Seventh part of question number 1, 1/10 to the power 10. So we will write reciprocal of 1/10 to the power 10 is equals to 10/1 to the power 10. Again this can be written as 10 to the power 10. अब देखो नीचे 1 लिखा था डिनोमिनेटर में, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है. So answer will be 10 to the power 10. So it is the reciprocal of 1/10 to the power 10. Now 8th part of question number 1. In this one, two rational numbers are given. 2/3 multiplied by 9/4. We have to find the reciprocal of the product of the given two rational numbers. So first of all, we will solve it. We will simplify it. There are two methods. In first one, you will multiply 2 9s are 18 and 3 4s are 12. Now you can convert this, you can change it into simplest form, dividing by 6. 6 3s are 18 and 6 2s are 12. So 2/3 multiplied by 9/4 is 3/2. इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर इसको ऐसे नीचे की इस तरफ देखा जाए इधर को, तो 2 1s are 2 and 2 2s are 4. ये इसको पहले भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 1s are 3 and 3 3s are 9. इस 2 से हमने 2 को भी डिवाइड किया, एक सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करना होता है, सेम नंबर से. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. और इसको सॉल्व करके हमने देखा यहाँ आया 3 ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2, तो 3/2 दोनों का रिजल्टेंट सेम आया, दोनों का परिणाम जो है सेम आया. 3/2 इधर भी और 3/2 यहाँ भी आया. So 2/3 multiplied by 9/4 can be written as 3/2 in its simplest form. Now we will find the reciprocal of 3/2 is 2/3. 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9/4, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप लोग किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं. पहले आप डिवाइड कर लीजिए या पहले आप मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कीजिए, दोनों मेथड ही ठीक है. 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 1/2 होल पावर 2 multiplied by 4. First of all, we will simplify it, then find the reciprocal of the given rational number. So 1/2 to the power 2, 1/2 multiplied by 1/2. यहाँ देख रहे हैं पावर 2 है, 2 बार लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई 4, ये 4/1 लिख सकते हैं इसे. अब नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. अब देखिए या तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 जा 4 एंड डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई 2 4, दोनों कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 4 1. एंड इन द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. आंसर. इसी क्वेश्चन को अगर हम दोबारा एक और तरीके से देखें, जो हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया है, ये 1/2 दोबारा देख लेते हैं. 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4. इसको सॉल्व करने का मेथड एक और भी है कि यहाँ हम 2 से डिवाइड करें, 2 1s are 2 and 2 2s are 4,
और इस 2 को हम 2 से कैंसिल करते हैं 1 टाइम ओनली, तो अब भी आंसर हमारा 1 ही आएगा। आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए बाद में, या पहले डिवाइड करके बाद में सब 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट विल बी द सेम। सो आफ्टर दिस यू कैन राइट रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके ही सही है। नाउ 10th part of this question number 1. This is the last question in this worksheet. Minus 7 upon 8 to the power 2. First of all, we will simplify the given rational number. Minus as it is. And 7 to the power 2, 7 into 7 upon 8 into 8. Or we can say 7 upon 8 multiplied by 7 upon 8, it is minus 49 upon 64। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि ये माइनस का था, स्क्वायर होकर प्लस का क्यों नहीं हो गया। तो इसका जो रीज़न ये है कि जो स्क्वायर हो रहा है ये माइनस का नहीं है। अगर ये माइनस इसके अंदर होता, सपोज इस प्रकार से होता, माइनस 7 अपॉन 8 टू द पावर 2 अगर ये होता, तो हम स्क्वायर करते, किस सॉल्व करेंगे तो -7 इंटू -7 अपॉन 8 इंटू 8 करते। इस केस में माइनस माइनस हो जाता, प्लस 49 अपॉन 64 होता इस केस में, जहाँ की माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर है। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, नंबर का स्क्वायर हो रहा है 7 अपॉन 8 का, और माइनस का साइन बाहर है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। इसलिए हम माइनस के साइन को ऐसे ही लगा रहने देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। नाउ वी विल फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -49 अपॉन 64। सो वी विल राइट रेसिप्रोकल ऑफ -49 अपॉन 64 is minus as it is 64 upon 49. This is the answer. Now your worksheet is completed. Thanks for joining.